علاوہ جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم گندم کے لیے روزانہ 25 کروڑ روپے سود ادا کر رہا تھا پنجاب روزانہ کا بینکوں کو. ٹھیک ہے جی, اس 25 کروڑ, اور اس وجہ سے 600 ارب روپے کا قرضہ ہو چکا تھا. اور اگر اسے ہم ادا نہ کرتے تو اس سال کے آخر تک یہ قرضہ 1100 ارب روپے ہو جانا تھا سود کی وجہ سے بنیادی طور پر. اور 2025 کے آخر پر یہ رقم 2000 ارب روپے تک پہنچ جانی تھی. یعنی حکومت روزانہ 2025 میں 80 کروڑ روپے روزانہ سود ادا کر رہی ہوتی. چنانچہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہم فوری طور پر 600 ارب روپے کا قرض اتارنے کا سلسلہ شروع کریں. اور یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس کو 4 ماہ میں ہم یہ قرض اتار دیں گے. یہ پچھلی کسی حکومت نے, جو منتخب حکومتیں تھیں, انہوں نے یہ کام نہیں کیا, حالانکہ بار بار کابینہ کو تجویز کیا جاتا تھا. اور اس طرح جو پیسے ہم بچائیں گے وہ صوبے کی بہتری پر لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا. اور جو 80 سال سے زائد عمر کے پینشنرز ہیں ان کو 20% ان کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ کچھ کی پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد اب ایس ایم تنویر صاحب مزید آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں ایس ایم تنویر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو عامر میر صاحب نے بتایا, میں بجٹ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس کی 30% سیلری کو انکریز کر دیا گیا, اور جو ملازمین جن کی ایج 80 سے پلس ہے اس کی سیلری 20% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ میں. پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے, جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے, انڈسٹریز ہے, ایجوکیشن ہے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور بہت بڑا آئی ٹی بوم آئے گا. جو دوسرے کنٹریز میں ہو رہی ہیں, پاکستان بھی کافی آگے جائے گا. پنجاب کی غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے اس بجٹ میں رکھا گیا. اسٹیمپ ڈیوٹی جو پراپرٹی ٹرانسفر یا کسی کام پہ سجیسٹ کی گئی تھی بجٹ میں 3%, اس کو کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کو 1% کے اوپر ہی فکس کیا گیا. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اگلے 4 مہینوں میں 65 بلین یعنی کہ 65 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جبکہ پچھلے سال میں 12 ارب روپے رکھے گئے تھے پورے سال میں. تو اس کو 65 ارب روپے رکھا گیا ہے اگلے 4 مہینے میں جو اس پہ اسپینڈ کریں گے. پنجاب میں جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہے, کنسٹرکشن کی اسکیمز ہیں, انشاءاللہ اگلے 4 مہینے میں 50% اس کو کمپلیٹ کرنے کا ٹارگیٹ کیا گیا. پنجاب تھرمل پاور لمیٹڈ ایک کمپنی جو 1240 میگا واٹ کے اوپر RLNG بیس پلانٹ 2017 سے بن رہا ہے, اور جو بھی وجوہات کی وجہ سے نہیں کمپلیٹ ہوا تھا, اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا, اور اس کے لیے 16 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے گئے. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اوپر 31% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ کو. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 31% کو انکریز کیا گیا. عامر میر صاحب نے جیسے بات کی, یہ بہت بڑی اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے. 600 ارب روپے
बैंक ऑफ पंजाब से और डिफरेंट बैंकों से लोन लेके जो गंदम में दिया गया था, जिसमें 25 करोड़ रुपए डेली का आप सूद दे रहे हैं, और अगर इसी तरह से हाथ चलता रहे तो 2024 में ये 1000 अरब रुपए हो जाएगा और 2025 में ये 2000 अरब हो जाएगा, जिसके ऊपर सिर्फ जो आप सूद भरेंगे वो कोई 80 करोड़ रुपए दिन का सूद होगा। ये इस बजट में ये 600 अरब रुपए भी खत्म करने का फैसला कर दिया गया, और इस तरह से जो पैसे सेविंग होगी वो पंजाब की आवाम के ऊपर लगाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट है इस बजट में जो किया गया। ये बजट बहुत ही पीपल फ्रेंडली बजट है, कोई नया टैक्स इस पे नहीं लगाया गया। आईटी और टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का फैसला कर दिया गया, और इसके लिए टेक्नोलॉजी जोन का भी कयाम कर दिया गया। ये इसके हाइलाइट्स थे जो बजट के थे, मैंने आपको बता दिए। अगर कोई और डिटेल आपका सवाल होगा तो हम यहाँ पर बैठे हैं आपका जवाब देंगे। सर, आपने 80% से ऊपर का तो बताया, 80 साल की उम्र से जो कम है उनकी पेंशन में किस फार्मूले के तहत कितनी परसेंटेज रखी गई है, जबकि असल तो वही गरीब लोग हैं जो मर रहे हैं, जो महंगाई से पिस रहे हैं, जिनको ज़्यादा बोझ जिनको बर्दाश्त करना पड़ रहा जी मुजाहिद साहब। उसमें 60 से 80 वालों का 5% है पेंशन इंक्रीज, लेकिन साथ ही आज नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा जिसमें कि आपकी रिटायरमेंट जिस दिन होती है आपकी तनख्वाह रुक जाती है। जिस दिन रिटायरमेंट होती है तनख्वाह रुक जाती है और साल 1.5 साल लगता है पेंशन पेपर्स कंप्लीट करने के लिए। आज नोटिफिकेशन इशू हो रहा है कैबिनेट की मंजूरी से कि जिस दिन आप रिटायर होंगे आपकी तनख्वाह 65% तनख्वाह आपको डे 1 से मिलती रहेगी 1 साल के लिए, जब तक आप अपने पेंशन के पेपर्स पूरे नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है पेंशनर्स के लिए कि रिटायरमेंट पे उनको तनख्वाह मिलती रहेगी और उनको पेंशन की वेट करने में मतलब विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहना पड़ेगा। 70 अरब रुपए जैसे कि आपने कहा कि आवाम के गरीब के लिए रखे गए हैं, इस हवाले से भी कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि 70 अरब पूरे के पूरे लगे 4 महीने में, क्योंकि बजट में पैसे तो रखे जाते हैं लेकिन वो तमाम पैसे भी लगते भी हैं, तो इस हवाले से कोई मैकेनिज्म। जी उसमें ये किस तरह से रिलीफ किस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये आपने बता दिया है कि जो मिलेगा ना ये किस तरह से होगा, मुजाहिद साहब बताते हैं। बॉक्स बनाएंगे या स्टोर्स का जैसे फेडरल गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, तो इस तरह का जी मैकेनिज्म बनाएंगे, किस तरह से ये देखें अभी जो चल रही थी रिलीफ वो जनरल सब्सिडी थी। आप सबको पता है कि जितने का आटे का एक बैग किसी अमीर को जिस प्राइस पे मिलता था उसी पे प्राइस पे किसी गरीब को भी मिलता था। टारगेटेड नहीं थी। सो ये आपकी बेटा जवाब ले लो। उसकी सब्सिडी टारगेटेड नहीं थी और यही एक वजह है कि जिससे कि ये जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि 600 अरब का जो लोन चढ़ा है और इस पे हम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो पेमेंट दूर की बात है, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर, हम लोन लेके इंटरेस्ट पे कर रहे थे सूद। सो अब ये जो 70 बिलियन रखा गया 4 महीने में, ये होगा टारगेटेड सब्सिडी के लिए। और टारगेटेड सब्सिडी 2-3 तरह से हो सकती है, उसमें कैश ट्रांसफ़र भी हो सकती है, उसमें आप सस्ती एसेंशियल कमोडिटीज़ भी दे सकते हैं। सो ये अभी हम 2-3 ऑप्शन है उस पर फाइनल करके कैबिनेट में लेके जाएंगे, लेकिन होगी टारगेटेड सब्सिडी। और इसमें बिस्क का डेटा बैंक भी हमारे पास है कि उसमें जो PMT लेट्स से 40 तक जो गरीब हैं उनको ये टारगेटेड सब्सिडी मिले। उसके अलावा सूबा अपनी भी रजिस्ट्री सूबे ने डेवलप कर रही है, सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री। और तीसरा हमारे पास डेटा बैंक वो भी है कि जो लोग रमज़ान में फ्री आटा लेके गए थे। सो इन तीनों डेटा बैंक्स को मिक्स करके हम एक टारगेटेड सब्सिडी करेंगे जिसमें कि गरीबों को एक्चुअली ये रिलीफ दी जाएगी। सर एक थोड़ी सी 4 माह ये जो 70 बिलियन की एलोकेशन है ये सिर्फ 4 महीने के लिए, 70 ये 4 महीने के लिए। सर मेरा आपसे सवाल है, मैं थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि आपने पहले जो एक मिनट आप इनके मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ये जो उसमें 70 बिलियन का ब्लॉक एलोकेशन रखी हुई है हमने, वो इसी के लिए जिन लोगों की बिजली की फॉर एग्जांपल 100 यूनिट का कंजम्पशन होती है महीने की, उसका बिल कोई आता है 2000 रुपये तक फॉर एग्जांपल। आटे की बोरी 10 kg की आजकल 1600 की है। सो ये कैश ट्रांसफ़र के थ्रू
हम इन टारगेटेड सेगमेंट्स को जो सबसे गरीब हैं उनको हम ये ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उनकी इनकम सप्लीमेंट हो जाए, उनके पास से कैश आ जाएगा, उससे वो जो अपने अखराजात करना चाहते हैं पूरे वो कर सकेंगे। ये चॉइस उन पर छोड़ेंगे हम। अच्छा अमीर साहब ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बजट पेश हुआ है 2023-24 का, इसमें मजदूर तबके के लिए क्या रखा है कि मजदूर तबके की जो तनख्वाह 35% की बढ़ाई थी आपकी हुकूमत ने, अब मजीद इसमें क्या इजाफा होगा या कमी होगी? नहीं, इसमें जो मिनिमम वेज है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, इसमें पंजाब भी वो मिनिमम वेज उसके एटपार्ट लेके आएगा। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने भी ये फरमाया कि ये आप कैश के ज़रिए भी गरीब को ये वैसे तो सिविल सर्विसेज ने पहले भी ये ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट को कि बजाय आटा तकसीम करने के जो कैश जो है वो लोगों के फंड्स में ट्रांसफ़र किया जाए। तो अभी ये फैसला हो गया है कि कैश के ज़रिए गरीबों को दिया जाएगा या अभी ये फाइनल नहीं हुआ? एक सवाल। दूसरा सर, ईफॉस सिस्टम जो है वो अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको जो है वो लेटेस्ट कंप्यूटर्स भी लोगों को देना पड़ेंगे, उसके लिए भी कोई बजट में कुछ चीज़ रखिए, क्योंकि महकमे जो है अब डिमांड कर रहे हैं अपने अपने बजट में, क्योंकि वो 3-4 हज़ार लैपटॉप जो है वो कम से कम और चाहिए उसके लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए। तो क्या इस बजट में ईफॉस सिस्टम के लिए भी आपने कुछ रखा है? बेसिकली आईटी सेक्टर में 10 बिलियन 10 अरब रुपया हमने 4 महीने के लिए एलोकेशन रखी है, जिसमें कि ये डेवलपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि आईटी ट्रेनिंग, एजुकेशन, आईटी बिजनेस इंडस्ट्री, उसमें पंजाब की हद तक जितने टैक्स थे जो कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज होता है वो हमने ज़ीरो कर दिया है। तो 2.6 अरब तो सिर्फ उसका बेनिफिट है जो आईटी सेक्टर को जाएगा। बाकी 10 बिलियन के फंड्स रखे हुए हैं। अलबत्ता महकमों के पास एडिक्वेट आईटी इक्विपमेंट है और ये ईफॉस चलाने के लिए इनको इतने लैपटॉप नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट महकमों के पास है, तमाम 40 महकमों के पास, वो एडिक्वेट है कि अगर उन्होंने ईफॉस चलाना हो। बट अगर किसी महकमे को चाहिए तो पैसे हम देंगे।